دوستو اگر آپ پہلی مرتبہ اس کہانی کو سن رہے ہیں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس کہانی کے پہلے پارٹس کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو کہانی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو چلیے اب کہانی شروع کرتے ہیں۔ 43 غائب ہوتے لوگوں کی کہانی پارٹ 4۔ عارف کا ہر قدم اس آدھے کھلے دروازے کی اور کسی کھچاؤ کی طرح جا رہا تھا، مانو کوئی ادرشیہ طاقت اسے اندر بلا رہی ہو۔ گانے کی دھیمی آواز اب تھوڑی صاف ہونے لگی تھی اور اس میں ایک بے چین کراہ چھپی تھی۔ لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، یہ آواز سارا کی لگ رہی تھی، مگر اس میں مانو کئی اور آوازیں بھی شامل تھیں، جیسے ہر غائب شخص کی پکار ایک ہی دھن میں بدل گئی ہو۔ عارف نے دروازے کو پوری طرح کھولا۔ سامنے ایک لمبا گلیارہ تھا، دیواروں پر گیلا پن، چھت سے ٹپکتا پانی اور بیچ میں پھیلی دھند جو کسی پرانے وقت کی راکھ جیسی لگ رہی تھی۔ فرش پر جگہ جگہ کاغذ کے ٹکڑے بکھرے تھے۔ اس نے ایک ٹکڑا اٹھا کر دیکھا، یہ سب ڈائری کے پنے تھے جن میں الگ الگ نام تھے اور ایک ہی بات، ہم نے بھی پکارا تھا۔ عارف کے دماغ میں ایک جھٹکا سا لگا، کیا یہ انہی 43 لوگوں کی کہانیاں تھیں جو اس رہسیمئی جال میں گم ہو چکے تھے؟ دیواروں پر اب پرچھائیاں چلنے لگی تھیں، مانو ہر نام کے ساتھ ایک عکس جڑا ہو جو اسے دیکھ رہا ہو۔ تبھی گلیارے کے انت میں ایک سایہ دکھائی دیا، سفید کپڑوں میں ایک لڑکی جو عارف کی اور پیٹ کر کے کھڑی تھی۔ اس کے بال گیلے تھے اور جیسے ہی اس نے سر گھمایا، عارف کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ سارا تھی، لیکن اس کا چہرہ ویسا نہیں تھا جیسا عارف نے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بجھی ہوئی تھی اور چہرہ ٹھنڈا، جیسے وقت نے اسے جکڑ لیا ہو۔ پھر بھی اس نے دھیرے سے مسکرا کر صرف ایک شبد کہا، دیر ہو گئی۔ عارف کی سانسیں جیسے تھم سی گئیں۔ دیر ہو گئی، یہ شبد کانوں سے ہوتے ہوئے سیدھا اس کی روح میں اتر گئے۔ ان 3 لفظوں نے اس کا سینہ جیسے چیر دیا ہو۔ شاید یہ وہ سزا تھی جو انتظار سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، جیسے کسی ادرشیہ دیوار سے ٹکرایا ہو، لیکن اسی پل سارا نے دھیرے سے اپنی کانپتی ہوئی انگلیاں اس کی اور بڑھائی۔ اس کی انگلیاں ہوا میں تیر رہی تھی، جیسے کسی بھولے ہوئے وعدے کی پرچھائی واپس لوٹ آئی ہو۔ اس چھون میں کوئی گرمی نہیں تھی، لیکن ایک جانی پہچانی کسک تھی، ایک ایسا احساس جو وقت سے پرے تھا۔ عارف نے اپنی گھبراہٹ کو قابو میں کیا اور دل کی دھڑکنوں کو تھامتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا۔ جیسے ہی اس نے سارا کی اور ہاتھ بڑھایا، اچانک پورا گلیارہ ایک سحرن سے بھر گیا۔ دیواروں سے عجیب سی کراہتی آوازیں اٹھنے لگیں، جیسے وقت خود درد میں ہو۔ پرانی کتابوں کے پنے ہوا میں تیرنے لگے۔ ان میں کچھ لکھا نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کی خالی اڑان میں ہزاروں کہانیاں دبی ہوئی تھی۔ ہر پرچھائی جیسے جاگ اٹھی تھی، اپنے وجود کی گواہی دینے لگی تھی۔ وقت شاید اپنے سارے غائب لمحوں کو ایک ساتھ زندہ کر رہا تھا۔ سارا اب دھیرے دھیرے ہوا میں گھلنے لگی تھی، جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک پکار کی ادھوری یاد تھی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ گرا، لیکن زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں ہی ٹھہر گیا۔ اس ایک بوند میں عارف نے وہ سارے چہرے دیکھے جنہیں کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، وہ 43 گمنام چہرے جو ایک ایک کر اس آنسو میں ابھرنے لگے تھے۔ پھر سارا کی آواز آئی، مگر اب وہ صرف ان کی نہیں تھی، وہ ان سب کی آواز بن چکی تھی جو کبھی تھے مگر اب نہیں ہے۔ عارف، اگر تم اب لوٹے تو ہماری تلاش ادھوری رہ جائے گی۔ عارف ٹھٹک گیا۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ وہ آگے بڑھے یا پیچھے لوٹے، سوال یہ تھا کہ کیا اب واپسی ممکن بھی ہے؟ عارف کی سانسیں اٹکی رہیں، جیسے کسی اندیکھی زنجیر نے اسے جکڑ لیا ہو۔ سارا کی آواز اب صرف ہوا میں گونجتی ایک پکار نہیں تھی، بلکہ ایک راستہ بھی تھا جو سیدھے اس اندھیرے کی طرف جاتی تھی جہاں وقت ٹھہرا ہوا تھا۔ گلیارے کی روشنی اب ماند ہو چکی تھی، پر عارف کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، وہ چمک جو ڈر سے نہیں یقین سے پیدا ہوتی ہے۔ اس نے دھیرے دھیرے قدم بڑھائے اور ہر قدم کے ساتھ زمین جیسے سانس لینے لگی، جیسے برسوں سے کسی کے لوٹنے کا انتظار ہو۔
दीवारों पर अब तस्वीरें उभरने लगी थीं। धुंधली आकृतियां जो पहले सिर्फ परछाइयां थी अब चेहरे बन चुकी थी। उन चेहरों में कोई बच्चा मुस्कुरा रहा था, कोई औरत मदद के लिए हाथ बढ़ा रही थी, कोई बूढ़ा इंसान अपने आंसुओं को छुपा रहा था। ये वही लोग थे, 43 चेहरे जिनकी तलाश एक दस्तक बनकर आज आरिफ की रगों में उतर रही थी। उसने एक आखिरी बार मुड़कर देखा। पीछे सिर्फ सन्नाटा था, आगे एक धुंधली दरार जो समय और हकीकत के बीच की सरहद बन चुकी थी। आरिफ ने अपनी सांस थामी और उस दरार में कदम रख दिया। उस दरार के पार कुछ बदल रहा था। हवा अब वो नहीं रही थी। उसकी सरसराहट में अब उन तमाम आवाजों की गूंज थी जो कभी दुनिया की भीड़ में खो गई थी। आरिफ अब सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो अब एक सवाल बन चुका था, एक ऐसा सवाल जो जवाबों की तरफ बढ़ रहा था। आरिफ के कदम वही थमे रहे, लेकिन उसका दिल अब किसी और जमीन पर धड़क रहा था, जहां वक्त रुक चुका था और हर लम्हा एक सवाल बन चुका था। उसके चारों तरफ हवा जैसे भारी होती जा रही थी, मानो उसमें सैकड़ों अनकही कहानियां घुली हुई हों। सारा का आंसू अब भी हवा में ठहरा हुआ था, लेकिन उसमें अब कुछ बदलने लगा था। चेहरे सिर्फ दिखाई नहीं दे रहे थे, अब वो बोल भी रहे थे। हम सब यहाँ नहीं हैं, लेकिन हमारी चीखें अभी जिंदा है। ये आवाजें एक ही स्वर में आने लगी। हम सो नहीं पाए क्योंकि जवाब अधूरे हैं। दूसरा चेहरा फुसफुसाया। हर चेहरा, हर आवाज अब एक तहरीर बन चुकी थी, गुमशुदगी की, ऐसी तहरीर जिसे किसी ने कभी दर्ज ही नहीं किया। आरिफ का चेहरा सियाह पड़ता जा रहा था। भीतर कहीं कुछ टूट रहा था या फिर नया बन रहा था, ये तय करना मुश्किल था। वो आगे बढ़ा। सारा अब पूरी तरह किसी धुन में तब्दील हो चुकी थी, जैसे वो एक दरवाजा थी जो अब खुल चुका था। आरिफ ने जैसे ही उस धुन के बीच कदम रखा, एक तेज सर्द हवा ने उसकी सांसों को थाम लिया। उसकी आंखों के सामने अचानक एक दृश्य उभरा। एक पुराना स्टेशन जहां एक लड़की हंसती हुई ट्रेन से उतरती है और फिर अगले ही पल गायब हो जाती है। क्या तुम उसकी कहानी जानते हो? वो आवाज फिर आई। आरिफ ने सर झुकाकर जवाब दिया, नहीं, लेकिन अब जानना जरूरी है। धुंध और गहरी होती गई। उसके सामने एक कांच की परत सी बनी, जिसमें पुराने अखबारों की कतरनें, टूटी घड़ियां और लापता लोगों की तस्वीरें धीरे धीरे उभरने लगी। वो अब उस राह पर था जहां लौटना एक धोखा और आगे बढ़ना एक कसम था। धुंध के उस दरवाजे से गुजरते ही जैसे वक्त ने अपना रुख मोड़ लिया था। आरिफ अब किसी दूसरी ही दुनिया में था। न ये शहर वैसा था, न हवा में वो गंध थी। यहाँ सब कुछ किसी भूले हुए समय जैसा था, जमी हुई सांसों की तरह ठहरा। लेकिन फिर भी हर चीज में एक अजीब सी हरकत थी, जैसे हर दीवार कुछ कह रही हो, हर साया किसी को ढूंढ रहा हो। उसके पैरों के नीचे जो जमीन थी, वो दरअसल जमीन नहीं, किसी पुराने प्लेटफॉर्म की टूटी हुई पटरियां थी, जिन पर अब ना कोई ट्रेन आती थी, ना रवानगी की कोई सीटी सुनाई देती थी। चारों तरफ वीरान बेंचें, टूटी टिकट खिड़कियां और दूर एक धुंधलाती हुई घड़ी जिसमें वक्त 3:17 पर रुका हुआ था। यहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। एक खुरदुरी आवाज उसके पीछे से आई। आरिफ ने पलट कर देखा। एक बूढ़ा दरबान सा आदमी जिसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ इंतजार था। किसका? आरिफ ने पूछा। जिसे तुम तलाश कर रहे हो और जिनके पीछे ये सारा शहर सोता चला गया। वो सब जो गायब हुए, एक ही ट्रेन से जुड़े थे। एक ट्रेन जो उस दिन आई हुई थी और नहीं भी। आरिफ सिहर गया। कौन थी वो लड़की जो स्टेशन पर उतरकर गायब हुई थी? बूढ़े ने धीमे से कहा, सारा। लेकिन वो अकेली नहीं थी। उस दिन कुल 43 लोग ट्रेन से उतरे थे और फिर कभी दिखाई नहीं दिए। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई गवाही नहीं, बस एक सियाह सुरंग जो ट्रेन के साथ ही जैसे निगल गई उन्हें। आरिफ ने धीरे से पूछा, वो सुरंग अब भी है? बूढ़ा आदमी हंसा। सिर्फ उन लोगों के लिए खुलती है जो सवाल लेकर आते हैं और वापस नहीं लौटते। और तभी उस वीरान स्टेशन की पिछली दीवार, जिसे सब आम समझते थे, अचानक हिलने लगी।
दीवार के पीछे से जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो। आरिफ ने पीछे देखा, न कोई शोर, न कोई राह, बस वो और उसकी जिज्ञासा। उसने कदम बढ़ाया उस सुरंग की ओर जहां शायद सिर्फ जवाब नहीं बल्कि वो भी उसका इंतजार कर रहे थे, जो कभी लौट कर नहीं आए। जैसे ही आरिफ ने सुरंग के मुंह में पहला कदम रखा, हवा का स्वाद बदल गया। अब उसमें लोहे की जंग, भीगी मिट्टी और किसी पुराने दर्द की गंध थी। सुरंग अंदर से उतनी ही जिंदा लग रही थी जितनी बाहर से मरी हुई। हर दीवार से जैसे सिसकियों की गूंज टकरा रही थी। आरिफ ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी बस कुछ कदमों तक ही जा पाई। ऐसा लगा जैसे बाकी रोशनी को गहराई ने निगल लिया हो, जो मानो अब उसकी हिम्मत को माप रही थी। 4 कदम अंदर बढ़ते ही सुरंग के भीतर एक धीमी रोशनी टिमटिमाई। दीवारों पर तस्वीरें थी, धूल और समय से मटमेली हो चुकी मगर पहचानने लायक। सारा, रफीक, नीला, डैनी और एक एक करके 43 चेहरे। हर तस्वीर के नीचे वही तारीख, 17 अप्रैल 3:17 PM और एक शब्द गुम। आरिफ का दिल जोर से धड़कने लगा। ये सब लोग यहाँ मौजूद थे या सिर्फ इनकी कहानियां? अचानक सुरंग में हल्की सरसराहट हुई, जैसे कोई और भी हो वहाँ। तुमने आने में देर कर दी। वही आवाज, वही सारा की मिली जुली पुकार अब और पास से आई। दीवारों से अचानक सफेद धुआं उठने लगा और उसमें एक परछाई बनी। परछाई चल रही थी लेकिन जमीन पर कोई परछाई नहीं पड़ रही थी। वो ट्रेन फिर आने वाली है आरिफ। इस बार या तो तुम सब कुछ जान जाओगे या खुद एक और तस्वीर बन जाओगे। आरिफ ठहर गया। उसके सामने सुरंग 2 रास्तों में बट रही थी, एक सीधा और दूसरा जहां से हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। क्या आरिफ उस सही रास्ते को चुन पाएगा या अतीत की सुरंग उसे भी निगल लेगी? आरिफ ठिठक गया। दोनों रास्तों को टॉर्च से देखा। दाएं वाला सीधा था, शांत और स्थिर, मगर बाएं वाला जैसे सांस ले रहा था। वहां से आती धड़कनों जैसी आवाज उसे खींच रही थी। ये कोई आम आवाज नहीं थी, ये दिल की नहीं, किसी जगह की धड़कन थी, जैसे दीवारें जिंदा हो और पुकार रही हो। अगर ये एक फंसाने का जाल है, उसने बुदबुदा कर कहा, तो मैं फंसने के लिए ही आया हूँ। आरिफ ने बाएं रास्ते पर कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, दीवारों पर जमी काई ने हल्की हरियाली की चमक दी। हर कदम के साथ सुरंग और गीली और गहरी होती गई। पानी टपकने की आवाज अब उसकी टॉर्च की रोशनी में झिलमिलाने लगी थी, लेकिन वहाँ सिर्फ पानी नहीं था, कहीं कहीं मिट्टी में हाथों के निशान भी थे, जैसे किसी ने दीवारें पकड़कर घसीटकर खुद को आगे खींचा हो। अचानक एक मोड़ आया। सामने एक पुराना लोहे का दरवाजा था, जंग खाया हुआ मगर बंद नहीं। आरिफ ने धड़कते दिल से उसे धक्का दिया। दरवाजा चरमराया और खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था, बिल्कुल बंद, मगर वहाँ कुछ रोशनी भी थी। वो रोशनी किसी बल्ब से नहीं आ रही थी, बल्कि वहाँ हवा में तैरती थी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर रखा था और पास ही एक कुर्सी जिस पर एक पुतला बैठा था, पर वो पुतला जैसे किसी इंसान की हूबहू नकल था। चेहरा नीला था। आरिफ की सांसें रुक गई। प्लास्टिक या मोम नहीं, वो मानो असली शरीर था जिसे किसी ने मोमजदा कर रखा हो। कुर्सी के पास एक डब्बा था, उस पर लिखा था, सच सुनने की हिम्मत है तो इसे चलाओ। आरिफ ने कांपते हाथों से रिकॉर्ड प्लेयर का स्विच घुमाया। एक धीमा खरखराता संगीत उभरा और फिर एक भारी आवाज सुनाई दी। अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझो मेरी वक्त की कैद टूट चुकी है। मेरा नाम डैनी है और मैं उन 43 गायब हुए लोगों में से पहला था। हम सबको एक एक करके बुलाया गया इस सुरंग ने। इसने हमें चुना, हमारी परछाइयों को खींच लिया और फिर हमें उन कहानियों में बदल दिया जो कोई सुनना नहीं चाहता। हम गायब नहीं हुए आरिफ, हम तो बस रोक दिए गए हैं एक वक्त में फंसाकर। अगर तुम चाहते हो हमें वापस लाना तो तुम्हें उस दरवाजे को खोलना होगा जो कभी खुला नहीं। इतना कहकर रिकॉर्डिंग रुक गई। आरिफ की सांस जैसे कुछ पल के लिए थम गई। उस पुराने कमरे में अजीब सी गूंज फैल गई,
जैसे दीवारों ने भी वो आवाज सुन ली हो। और फिर अचानक वो पुतला, जिसकी कांच सी ठंडी आंखें अब तक वीरान थी, धीरे धीरे खुलने लगी। आरिफ की रगों में सिहरन दौड़ गई। क्या ये पुतला अब सचमुच जाग रहा था? क्या नीला अब भी कहीं था? क्या ये किसी बीते हुए लम्हे की वापसी थी, या किसी छुपे हुए समय जादू की दस्तक? और सबसे बड़ा सवाल, वो दरवाजा जिसके बारे में हमेशा कहा गया कि वो कभी नहीं खुलता, क्या वही इस पूरी गुमशुदगी की गूंज थी? आरिफ की आंखों में अब डर नहीं, एक मिशन चमक रहा था। उस दरवाजे तक पहुंचना होगा, चाहे रास्ता धड़कते सन्नाटे से होकर क्यों ना गुजरे। आगे क्या होगा जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस तरह के मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको इस तरह का कहानी पढ़ना पसंद हो तो कमेंट बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप वहां भी विजिट करके और भी कहानी पढ़ सकते हैं। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया।